Good evening, I'm Idris, and tonight on Big Story, we take you inside the operation that changed the rules of engagement in South Asia. A massive retaliation, a near nuclear flashpoint, and a ceasefire that came just seconds before catastrophe. India's Operation Sindoor has not only redrawn the battle lines, but sent a thunderous message across the border. And the world is watching. Over the next few minutes, we break down exclusive details of India's deep strikes into Pakistani territory, the military targets that were hit with surgical precision, and global diplomacy that followed from Rawalpindi to Washington. The fallout is far from over. This is not just a military response, this is a new doctrine unfolding before our eyes, and that's our today's big story. Exactly a day after the ceasefire was announced between India and Pakistan, the Indian government declared Operation Sindoor a resounding success. Defense Minister Rajnath Singh emphasized that the operation was not merely a military action, but a moral reckoning, a direct response to the brutal Pahalgam terror attack that had shaken the nation. He stated that the Indian Army had avenged the loss of innocent lives by striking at the very groups that sought to defile the spirit and sovereignty of the country. The phrase wiping the sindoor of many families underscored the emotional gravity behind the decision to act forcefully and without hesitation. बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्री गणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग एमओयूज साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका है। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है, परंतु इसके साथ साथ यह भारत की नई इनोवेटिव एनर्जी को भी दिखाता है, जिसको हमने पिछले कुछ सालों में गति देने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर क्रिटिकल हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है, चाहे सिविल सेक्टर। Behind the decision to act forcefully and without hesitation, the Indian Army's strikes during Operation Sindoor demonstrated not just strength but strategic discipline. Indian forces carried out targeted precision strikes deep inside Pakistani territory, including locations near Rawalpindi, the seat of Pakistan's military command. Despite the scale of these actions, Indian forces displayed calculated restraint, aiming to degrade the enemy's capability without triggering indiscriminate escalation. Rajnath Singh praised the armed forces for their valor and clarity of purpose, stating that the operation had achieved its objective without compromising India's global reputation as a responsible military power. मैं इस सीज फायर को जो ये हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको कई दृष्टिकोण से देखता हूँ। पहला दृष्टिकोण तो ये है कि 22 अप्रैल का जो बुज़दिली वाला
कायराना तरीके से किया गया जो हमला था निहत्थों पर, जिसमें कि मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी विक्टिम हुआ और आज हमारे बीच में नहीं है। उस जो दुर्घटना थी उसका बदला भारत सरकार ने बहुत अच्छे से लिया है और उसको पनाह देने वाले, आतंकवाद की विचारधारा को पनपाने वाले, उसको बढ़ाने वाले, पालन पोषण करने वाले, आतंकी पैदा करने वाले और आतंकियों को इस से पहले जो भारत सरकार ने और सेना के तीनों अंगों ने और उसके जवानों ने जो कि जिस कार्य कुशलता के साथ काम किया और उस घटना का बदला लिया, वो काबिल तारीफ है। और जब बात आती है सीज फायर की, तो ये एक राष्ट्र की अपनी कूटनीति होती है, अपनी नीतियां होती हैं। अन्य देशों को भी देश भी इससे अछूते नहीं रहते। तो राष्ट्र अध्यक्ष ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो उसको मैं स्वीकार करता हूं और हम उससे सहमत हैं। कहना नहीं चाहिए, मैं कहता हूं यदि वो सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसको पाकिस्तान की तरफ से यदि सीज फायर का उल्लंघन होता है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। एटलीस्ट बलूचिस्तान बन जाना चाहिए, एटलीस्ट पीओके पे हमारा कब्जा होना चाहिए, एटलीस्ट इस तीनिया जो बाल्टिस्तान का हम सुनते हैं वो सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ के लोग भी इन लोगों से बहुत त्रस्त हैं। और ये यदि दोबारा करने की इसने हिमाकत की तो इसका अंजाम भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के सभी राष्ट्र आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट हैं और सभी चाहते हैं कि इस आतंकवाद रूपी राक्षस को का संपूर्णतः इसको नष्ट किया जाए, दुनिया से खत्म किया जाए, क्योंकि तभी सौहार्द के साथ हम सब रह सकते हैं। भारतीय सेना को कोई मैसेज या? हाँ, भारतीय सेना को मैं While New Delhi moved to reinforce its defensive posture, Prime Minister Narendra Modi chaired an emergency meeting with Defence Minister Rajnath Singh, National Security Advisor Ajit Doval and 3 service chiefs. The meeting marked a crucial moment of wartime leadership as India faced cross-border hostility even after agreeing to a bilateral ceasefire. These deliberations were followed by reports of renewed Pakistani firing along the line of control in Jammu and Kashmir. Explosions rocked parts of Srinagar and trust, painstakingly rebuilt in hours following the ceasefire, quickly began to unravel. US प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है, and I quote, I am very proud of the strong and unwavering powerful leadership of India and Pakistan. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. तो इस ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि और ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है। ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी में एक न्यूट्रल जगह पे एनएसएस मिलेंगे, उनका एनएसए और हमारे एनएसए साहब वहाँ मिलेंगे, डोवल साहब। और उधर जो वैंग यी हैं, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बात की हिंदुस्तान से कि यहाँ मतलब के जो
क्योंकि सिचुएशन नहीं है ना कि दोनों ही एक न्यूक्लियर देश हैं, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहता कि कोई युद्ध ऐसा हो। मुझे याद है इनफैक्ट 2022 में जब प्रधानमंत्री जी पुतिन साहब को मिले, उन्होंने कहा कि इस युद्ध के दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो ये तो प्रधानमंत्री भी जानते थे कि युद्ध में दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो फिर उस पर भी सवाल उठेंगे। तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए, हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी हैं, इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे मासूम लोग मारे गए, और प्रधानमंत्री जी उस बैठक में पहले नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो लगता है कि उनको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आश्वासन इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय प्रधानमंत्री होते तो वो हर जगह में, हर ऑल पार्टी मीटिंग में भी होते, स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता, सबके साथ बातचीत होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और दोबारा अपनी डिफेंस सर्विसेज को सैल्यूट करना चाहता हूं। यूएस प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है, एंड आई कोट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. India's foreign policy establishment swiftly condemned Pakistan's actions. Foreign Secretary Vikram Misri publicly accused Islamabad of breaching the ceasefire, understanding and urging them to act responsibly. His statement was a part of a broader diplomatic push by New Delhi to demonstrate that it had exhausted all peaceful avenues before retaliating militarily. Meanwhile, India announced the continued suspension of the Indus Water Treaty and closure of Kartarpur corridor, signaling that non-military levers would also be deployed to increase the cost of Pakistan's aggression.
On the battlefield, India made its position abundantly clear. In a press briefing, the Indian Armed Forces declared that their precision strikes were not just punitive but preemptive. Designed to deter future hostility, Operation Sindoor had not only neutralized terror infrastructure but also served as a strategic wake-up call. India, the military spokesperson said, had the capability to target any system that posed a threat and would do decisively. The language was firm, almost surgical, intended to signal both capacity and intent. बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। भारतीय वीर सैनिकರಿಗೆ भारतीय वीर सैनिकರಿಗೆ भारतीय वीर सैनिकರಿಗೆ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत। सच बोले होगा वो फांसी है, बंद है रहा है। Tensions rose further when Pakistan fired a ballistic missile towards the Indian region of Sirsa. Although it was intercepted, this act marked a dangerous escalation. India's response was swift and overwhelming. Within 90 minutes, Indian forces launched retaliatory strikes on 10 Pakistani air bases using BrahMos, Hammer and Scalp missiles. These actions shook the geopolitical equilibrium and prompted urgent intervention from the United States. High-level calls between US officials and both Indian and Pakistani leadership ultimately led to the ceasefire. The world stood on the edge of the nuclear catastrophe, only narrowly pulled back through diplomatic effort. अभी वेरिफिकेशन आएगी इसकी, लेकिन जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का, फिर जो हुआ, जो पहलगांव में हुआ और उसके बाद सीज फायर हुआ, हमारे इतने आदमी मरे, हमारी फौज को नुकसान हुआ, तो अब हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाएं और वहाँ सारी बात डिस्कस करें, पहलगांव से लेकर अब तक क्या क्या बात हुई, कि देश की जनता ये जानना चाहती है भी है क्या मामला, क्या है, अमेरिका से क्या बात हुई है, क्या क्या अमेरिका की इन्विटेशन क्या हुई है, ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी डिस्कशन की जरूरत है और स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, और उसमें सब, क्योंकि उसमें सारी बात आ जाएंगी आपकी। तो इसी वजह से स्पेशल सेशन बुला रहे हैं ना, ताकि अब जो सीज फायर हुआ है और जो पहलगांव में हुआ, इसके बीच में क्या क्या हुए, पहलगांव में क्या 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 कारण से वहाँ हुआ, सारी बात जो है पार्लियामेंट के सेशन में डिस्कस। देखिए वो तो अभी वेरिफिकेशन आएगी इसकी, लेकिन जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का, फिर जो हुआ, जो पहलगांव में हुआ और उसके बाद
सीज फायर हुआ, हमारे इतने आदमी मरे, हमारी फौज को नुकसान हुआ। तो अब हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाएं और वहाँ सारी बात डिस्कस करें। पहलगांव से लेकर अब तक क्या क्या बात हुई कि देश की जनता ये जानना चाहती है भी है क्या मामला क्या है। The Indian strikes were devastating in both scale and precision. Noor Khan Air Base near Islamabad was among the first to be targeted. As a major logistics and air refueling center for Pakistan's military, its destruction severely hampered operational continuity. Its location, dangerously close to Pakistan's nuclear command hub, triggered international concern and media attention. The New York Times reported the strike had set off alarm bells in Washington, reflecting the base's strategic importance and the gravity of the situation. Rafiki Air Base in Shorecourt was another critical target known for housing frontline combat squadrons. Its destruction removed one of the sharpest offensive